Hello, good morning, students. In this lecture, we are going to study operations on sets. Before going to start operation on set, we have to know Euler's Venn diagram. Here, Euler's Venn diagram is nothing but a name of a scientist. Venn is a name of a scientist who invented this diagram. So, Euler Venn diagram is what it indicates. Let's see. To express the relationship among sets, we represent them pictorially by means of diagrams known as Euler Venn diagrams, or simply we can say Venn diagrams. In Venn diagrams, the universal set U, already you know universal set. What do you mean by universal set? A universal set U is represented by the rectangular region. Universal set U is denoted by the rectangular region, this one. By the rectangular region, and its subsets are represented by closed bounded circle inside this rectangular region. See, simply U is the universal set. U is the universal set and it is denoted by rectangular. रेक्टेंगुलर से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को, और इसके जो भी सबसेट्स है वो क्या है, सर्कल से डिनोट कर रहे हैं. यहाँ पे दो सर्कल है, देयरफॉर इट हैज़ टू सबसेट्स. ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, दो सबसेट है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल. In the set U, which consists 1, 2, 3, 4, 5, up to 10, is in which it is a universal set. U है, इसके अंदर पूरे 10 एलिमेंट है एक से लेके. तो सेट A क्या है यहाँ पे? सेट A is nothing but 2, 4, 6, 8, 10, and set B is 4, 6. ये दोनों क्या है? Subset of universal set, and also B is subset of A. B का एलिमेंट जो है inside A है. B, it is nothing but B. A is this element. Therefore, B is subset of A, right? तो फाइनल कंक्लूजन क्या है यहाँ पे? वेन डायग्राम बोले तो क्या? वेन डायग्राम मीन्स हियर सेट्स के बीच में के रिलेशंस के बारे में हम बता सकते बाय मीन्स ऑफ व्हाट? डायग्राम्स. डायग्राम ड्रॉ करके दो सेट के बीच में क्या रिलेशन है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. और वो वेन डायग्राम कैसा रहेगा? वहाँ पे यूनिवर्सल सेट एक U बोल के रहता, और उसका सबसेट्स जितने भी है उसको हम कैसा डिनोट करते हैं? सर्कल से डिनोट करते हैं. और यू कैन से क्लोज्ड बाउंडेड सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगुलर रीजन. सो नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, that is nothing but operations on sets, right? Now already we know Venn diagram, right? Now first one is union of two sets. यूनियन मीन्स यहाँ पे क्या आपको दिमाग में आता है? यूनियन बोले तो यूनियन पूरे इकट्ठा एक साथ होने का यूनियन बोलते ना, भी सुने होंगे आप बहुत सारे जगह में. डे टू डे लाइफ में यूनियंस रहते. अभी कंपनीज वगैरह में क्या रहते? यूनियंस रहते. अभी बाहर भी क्या है? यूनियंस रहते. हर एक वर्कर्स का यूनियन रहता. सिमिलरली इन मैथमेटिक्स आल्सो इट्स अ यूनियन. व्हाट? यूनियन ऑफ सेट हियर. Union of two sets. We are considering here union of
two sets. See, what is definition of union of two sets? The union of two sets A and B written as A union B. Read it as A union B. ये जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं हम? यूनियन बोल के रीड करते हैं. सो the union of two sets A and B written as A union B is a set consisting of all the elements which are in either in A or in B or in both. Union means union of two sets A and B written as A union B is a set consisting of all the elements which are either in A or in B or in both. वो सारे एलिमेंट्स जितने भी है सेट A और B में वो पूरे इकट्ठे क्या है यहाँ पे? यूनियन है. और उसके जो कॉमन एलिमेंट्स रहते हैं, अब एक एग्जांपल देखेंगे हम. तो मैथमेटिकली वी कैन राइट A union B which is equals to x such that, दो डॉट है देखो यहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं? सच दैट. ऑलरेडी पढ़े हम डेफिनेशंस का सच को पढ़ते वक्त. x such that x belongs to A. The symbol is nothing but belongs to A. x belongs to A or x belongs to B here, right? x belongs to A और मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? यूनियन ऑफ टू सेट्स कैन बी रिटन एज A union B which is equals to x such that x belongs to A or x belongs to B. Clearly, if x belongs to A union B, then x belongs to A as well as x belongs to B. And if x does not belongs to A union B, then which implies x does not belongs to A and x does not belongs to B. x क्या है? A यूनियन B का एलिमेंट है बोल के बोल रहे हैं. तो क्या होता है यहाँ पे? वो x A का भी एलिमेंट होता और x B का भी एलिमेंट होता. अभी हम क्या बोल रहे हैं? x A यूनियन B का एलिमेंट नहीं है. तो यूनियन के दोनों सेट आते ना इसके अंदर. अभी तो अलग अलग ले रहे हैं यहाँ पे. तो A में भी नहीं है x, B में का भी एलिमेंट नहीं है x. सिंपल क्या है यहाँ पे? यूनियन मीन्स दो सेट्स के पूरे एलिमेंट इकट्ठे लिखने के लिए हम क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ टू सेट्स, राइट? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब एक एग्जांपल देखेंगे. सी, फॉर एग्जांपल हियर if A consists of A, B, C, D and B consisting of C, D, E, F, then A union B is, हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है यहाँ पे? all the element of set A as well as set B or in both. अभी देखो यूनियन कैसा लिख रहे हैं? अभी A यूनियन B. सेट ए में ए बी सी डी है, चार एलिमेंट है. तो ये चार एलिमेंट यहाँ पे आ गए ए बी सी डी. सी और डी क्या है यहाँ पे? कॉमन है दोनों टर्म में. सी एंड डी आर कॉमन टर्म्स हियर. जो भी कॉमन टर्म्स है वो एक ही बार लिखते हैं. अभी सी एंड डी क्या है? एक बार आ गए देखो, फिर दो बार लिखेंगे. दो बार नहीं लिखना कभी भी सेट में. ऑलरेडी हम डेफिनेशंस में पढ़े. इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड इन द नोट all the elements should be right only once in the set, right? अभी C, D दो बार आ रहा है तो उसे एक ही बार लिखे. एंड सेकेंड सेट में क्या है? E, F है तो E, F भी आ गया अंदर, राइट? तो ओवरऑल क्या होगा? ये यूनियन B A, B, C, D, E, F is nothing but union of two set, that is A and B. अभी पिक्चोरिकली कैसा देखें? वेन डायग्राम नीचे लिए हम. यूजुअली वेन डायग्राम इज डिनोटेड बाय यूनिवर्सल set, that is U is universal set. It is
डिनोटेड बाय द रेक्टेंगुलर एंड इट्स सबसेट्स, अभी दो सबसेट है, सबसेट ए है, सबसेट बी है, अभी दोनों सेट ले लिया यहाँ पे, इट इज़ ए एंड दिस इज बी. यूनियन ऑफ दीज टू, ऑल द शेडेड रीजन, इट इज़ नथिंग बट द शेडेड रीजन, पूरा जो भी ये शेडेड रीजन है ये क्या है, यूनियन ऑफ सेट है. यहाँ पे सेट ए भी आता है, सेट ए भी आता है, सेट बी भी आता है, और इसके जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो भी पूरे आएंगे यहाँ पे, राइट. इट इज़ नथिंग बट योर यूनियन ऑफ टू सेट्स. यहाँ पे इसके अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी चारों एलिमेंट्स है ए सेट में. ए बी, इस यहाँ पे ए कॉमा बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और इसके अंदर सी है, इसके अंदर डी है, और यहाँ पे ई है, और यहाँ पे एफ है, राइट. क्या हो रहा है यहाँ पे, इन द सेट, अभी मैं एलिमेंट्स लिख दूंगा अंदर टू बी क्लियर. हियर इट इज ए बी सी डी ई एंड एफ. अभी ये दोनों सेट के एलिमेंट पूरे मिलाने के बाद हमें क्या मिलेगा, यूनियन मिलेगा. सेट ए में ए बी सी डी है, ए सेट क्या है पूरा, ए बी सी डी 4 है. ए सेट में भी सी डी ई एफ 4 एलिमेंट्स है. यहाँ पे सी कॉमा डी, ये जो टर्म है, ये दोनों टर्म क्या है यहाँ पे, बोथ आर इन कॉमन. ये दोनों टर्म में क्या है, सी एंड डी कॉमन है. देयरफॉर वी हैव रिटन सी एंड डी ओनली वंस. ए बी सी डी ई एफ, all the elements of the two sets is nothing but union of A and B. The next, the definition is intersection of two sets. Intersection means generally आपके माइंड में क्या आता है, intersect means a line which passes or which cuts the other line is nothing but you can say intersection of point. Similarly here also, the intersection of two sets, the common elements between two sets, जो एक के ऊपर एक लाइन जो पास होता ना, अभी ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, वहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्रिएट होता. हियर ऑल्सो दैट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट मीन्स दैट इज कॉमन पॉइंट बिटवीन टू लाइन्स. अभी एक लाइन है, एक लाइन से, अभी फॉर एग्जांपल हम ले लिए, अभी एक लाइन है बोल के समझो, इट इज़ वन लाइन. अभी और एक लाइन क्या है, यहाँ से पास हो रहा. अभी ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इट इज़ इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं हम. इट इज़ कॉमन टू दिस लाइन एज वेल एज दिस लाइन. सिमिलरली हियर ऑल्सो इन दिस सेट, in this set, the intersection of two sets A and B written as A intersection B, this one, A intersection B, read as A intersection B, is the set consisting of all the common elements of A and B. जो भी कॉमन है दो सेट में, दो सेट्स हम कंसिडर करने यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए, जो भी एलिमेंट कॉमन है सेट ए और बी में, वो एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. दस हाउ टू राइट इट मैथमेटिकली, लेट्स सी हियर. ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. हियर द वर्ड एंड इज इम्पोर्टेंट. हियर यूनियन में क्या लिए थे, और लिए थे, यहाँ पे क्या ले रहे, एंड बोल के कंसिडर कर रहे. कीप इन माइंड, और मीन्स यूनियनिटीज, एंड मीन्स इंटरसेक्शन. क्लियरली एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, क्लियरली एक्स बिलोंग्स टू
A intersection B, which implies x belongs to A and x belongs to B. And if x does not belongs to A intersection B, then we write it as x does not belongs to A or x does not belongs to B. Element नहीं है, belongs means the elements which are present in that set. If does not belongs means the element which is not in that particular set. For example, let us consider an example. If A equals to A comma B comma C comma D, set A consists of A comma B comma C comma D, and set B consists of again C comma D comma E comma F, then A intersection B, which is equals to C comma D. See here, only common elements we are considering here in the intersection of sets. Only common elements which are present in both the set A and as well as B, right? A as well as B. From the two sets we are considering the common element. See, in the Venn diagram we can represent it as, again U is the universal set here, right? And its two subsets, that is set A and set B. Here the shaded region, this much, the shaded region is nothing but your intersection of set. That is nothing but the common elements. जो भी elements है दो set में, उसके common elements निकालना हम सिर्फ. अभी set A में क्या बता रहे हैं यहाँ पे हमें? Set A consisting of again A, B, C, D, E, F. अब ये दोनों सेट में कॉमन कौन सा एलिमेंट्स है? C and D. Only the two elements are in common, right? So C comma D are nothing but intersection of two set, that is A intersection B, which is equals to C comma D. The next definition is disjoint sets. Disjoint means, see here, two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B equals to, that is A intersection B equals to phi. When we can say two sets A and B are disjoint if the condition is A intersection B equals to phi, that is A and B have no elements in common. A and B have no elements in common. For example, let us consider an example. If A equals to 1 comma 2 comma 5 and set B equals to 2 comma 4 comma 6, then A intersection B equals to phi. The symbol, it is nothing but phi. Already we know empty set definition. A intersection B equals to phi. So A and B are disjoint sets. We are saying here दोनों disjoint है. Let's see by Venn diagram again here. Again U is the universal set which is represented by rectangular, and their subsets, that is two set A and B are there. Set A, set B, there is no common element. अभी set A में क्या है? Set A consists of 1, 2, 5 and set B consists of 2, 4, 6. Is there any element common in the both the sets? No. There is no common element between set A and set B. Therefore यहाँ पे कुछ भी कनेक्शन नहीं है. दोनों के सेट के बीच में कनेक्शन है क्या? नहीं है. There is no connection. दोनों दूर दूर है, एक से एक विथआउट कनेक्टेड है. कोई कौन सा भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है यहाँ पे.
Therefore A intersection B is nothing but phi. Simply याद रखना, A disjoint set means there is no common elements between two sets, is nothing but your disjoint set, right? The next, difference of two sets. Difference of two sets का definition क्या है देखेंगे. If A and B are two sets, then their difference, that is A difference B, is defined as A difference B which is equals to x such that x belongs to A and x belongs to, and x does not belongs to here, not belongs to. A difference B which is equals to x such that x belongs to A and x does not belongs to B is nothing but your difference of set A and set B. Similarly, B difference A which is equals to x such that x belongs to B and x does not belongs to A. डिफरेंस मीन्स अभी ए डिफरेंस बी बोल रहे हैं, यहाँ पे जो माइनस साइन है ना, इसे हम क्या बोल रहे हैं, द टर्म दिस वन, इट इज डिफरेंस. ए डिफरेंस बी इज नथिंग बट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी. इफ बी डिफरेंस ए, देन वी राइट इट एज एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए. ओनली द एलिमेंट, अभी ए माइनस बी आए तो सिर्फ ए के एलिमेंट्स रहेंगे वो सेट में, बी के एलिमेंट्स नहीं रहेंगे. सिमिलरली बी डिफरेंस ए है, यहाँ पे ए के एलिमेंट नहीं रहेंगे, सिर्फ बी के एलिमेंट्स रहेंगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी हियर, अब एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे. इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड बी इक्वल्स टू 1 3 5 7 9, therefore A difference B can be written as, अभी दो सेट है हमारे पास, सेट A भी है, सेट B भी है. अभी A डिफरेंस B लिखना है हमें. अभी डेफिनेशन क्या बता रहा हमें यहाँ पे, A डिफरेंस B मीन्स सेट A में जो एलिमेंट है वही रहना, सेट B के एलिमेंट नहीं होना हमें. अभी सेट A B कंपेयर करो, कौन सा चीज़ सेट B में है वो मत लिखो, ओनली सेट A में रहना वो एलिमेंट, B में नहीं रहना. तो क्या है यहाँ पे, 1 A में भी है, B में भी है, छोड़ दिए. 2 A में है, B में नहीं है, तो B क्या, 2 क्या हो गया, सेट 2 इधर आ गया, B में, A में आ गया. अभी 3 देखो, 3 दोनों में है, 3 छोड़ दो. 4 A में है सिर्फ, B में नहीं है, तो 4 लिख लो यहाँ पे, A डिफरेंस B में. 5 दोनों सेट में है, अभी सेट A का तो एलिमेंट्स पूरे ख़त्म हो गए, राइट. Therefore 2, 4 आर नथिंग बट योर A डिफरेंस B. 2, 4 क्या है, सेट A में है सिर्फ, B में नहीं है. अभी B डिफरेंस A क्या होता है देखो, अभी उसका रिवर्स. अभी यहाँ पे क्या है, सेट B में जो एलिमेंट है वही लेना, A में एलिमेंट जो है वो नहीं लेना यहाँ पे. सिमिलरली क्या है, 1 3 5 वो क्या है, सेट A और B में दोनों में है. Therefore only 7 and 9 are the two elements which are present in B but not in A. Therefore B difference A is 7, 9 and A difference B is 2, 4. अभी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कैसा करें देखो यहाँ पे, the elements which are present in set A only. ये रीज़न जो बता रहा ना, शेडेड रीज़न, ये रीज़न क्या बता रहा है हमें, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ओनली A. कॉमन एलिमेंट्स में भी नहीं जाना, ये नहीं होना हमें, ये भी नहीं होना हमें. प्योरली द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट A, दैट इज नथिंग बट A डिफरेंस B, एंड B डिफरेंस A इज हियर ओनली, द शेडेड रीजन इंडिकेट्स हियर ओनली द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट B बट नॉट दिस रीजन एंड दिस रीजन. ये दोनों रीजन के एलिमेंट्स नहीं होना हमें, प्योरली क्या रहना वो सेट
बी में रहना, दैट इज बी डिफरेंस ए, और यहाँ पे ए डिफरेंस बी मीन्स प्योरली द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए ओनली, राइट? Now we move to the next slide again. Here some note are there. क्या क्या है देखो notes. First point is A difference B which is not equals to B difference A. In the last example only we saw that A difference B अलग का अलग वैल्यू आते हैं कभी भी, और B difference A के वैल्यूज अलग आते हैं, वो कभी भी एक के एक बराबर नहीं होते. दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर A difference B is not equals to B difference A. And the set, second point is, and the set A difference B and B difference A and A intersection B are disjoint sets. ये क्या है? disjoint set है. A difference B, B difference A and A intersection B are disjoint sets. And next point one is A difference B is subset of A and B difference A is subset of B, right? ये स्टैंडर्ड नोट से याद रखना दिमाग में, आगे एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त आपको हेल्प आएंगे. एंड अगेन A difference phi is A and A minus A equals to phi. ऑब्वियसली सिंपल है, यहाँ पे मालूम होता. देखते हैं हमें क्या है. अभी A minus phi है, the elements belongs to set A only, therefore it is equals to A. A minus A बोल रहे अभी, A difference A, A difference A means यहाँ पे दोनों A each है एलिमेंट, सेट दोनों अलग नहीं है, एक ही है, therefore it is equals to what? Phi only, right? Next definition is symmetric difference of two sets. See here, the symmetric difference of two sets A and B is denoted by a triangle B. That is, triangle is nothing but symmetric difference. Here simply difference is a minus sign. अभी प्रीवियस में देखें हम डिफरेंस का डेफिनेशन, वहाँ पे क्या था? माइनस था. अभी सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए क्या ले रहे हैं? यहाँ पे ट्राइंगल है, देखो. इट इज़ रीड इट एज सिमेट्रिक डिफरेंस. इट इज़ डिफाइंड एज इन मैथमेटिकली ए symmetric difference B which is equals to what? A difference B union of B difference A. A difference B union of B difference A. For example, A consists of 1, 2, 3, 4. 5 एलिमेंट है सेट A में. सेट B में भी 1, 3, 5, 7, 9 5 एलिमेंट्स है. Then symmetric difference of these two sets can be written as A symmetric difference B which is equals to A difference B union of B difference A. Simply symmetric difference means A difference B और B difference A का जो भी यूनियन है. अभी यूनियन सेट मालूम है, दो सेट के पूरे एलिमेंट्स A और B, और इन बोथ पूरे एलिमेंट इकट्ठा लिखने के लिए हम क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं. यहाँ पे भी क्या कर रहे हो? A डिफरेंस B और B डिफरेंस A का यूनियन निकाल रहे हैं यहाँ पे. अभी देखो यहाँ पे A डिफरेंस B का यूनियन क्या है? A डिफरेंस B का यूनियन क्या है? द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन A बट नॉट इन B. तो 2, 4 क्या है? सिर्फ A में है, B में नहीं है. देयरफॉर A डिफरेंस B इज 2, 4 एंड B union write down as it is here. B difference A is the element belongs to set B but not A, right? यहाँ पे 7, 9 are the two elements which present in set B but not A. अभी 2, 4 union 7, 9 आया. अभी union means all the elements present in set this set and this set. Commonly we can write it as 2, 4, 7, 9.